السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ مسلم لیگ نون کا مینار پاکستان پر سیاسی قوت کا مظاہرہ۔ محمد نواز شریف کا وطن واپسی پر پہلے جلسے سے خطاب۔ ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ ملکی ترقی کے لیے تمام اداروں کو مل کر آئین کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ میرے دل میں انتقام کی کوئی خواہش نہیں۔ جب بھی موقع ملا پاکستان کے مسائل حل کیے۔ قومی خدمت کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ معاشی ترقی، روزگار کی فراہمی اور عوامی فلاح کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف۔ نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ترقی اور خوشحالی کا سفر آگے بڑھا۔ ہمارے ادوار میں 9 مئی کا واقعہ ہونا تو دور کی بات، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ نواز شریف میں ہمارے پاکستان جدوجہد جنون اور مسلم لیگ نون کا نام ہے۔ ایک بار پھر ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا جلسے سے خطاب۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر امیگریشن کا عمل مکمل کیا۔ قانونی ٹیم کی ملاقات۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط کیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر شہباز شریف اور پارٹی رہنماؤں نے استقبال کیا۔ محمد نواز شریف کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی بھی جبر کسی محب وطن کو ملک آنے سے نہیں روک سکتا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ سربراہ مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت حسین کا محمد نواز شریف کی وطن واپسی کا خیر مقدم۔ عوام کی محمد نواز شریف سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ قومی یکجہتی اور مفاہمت وقت کی ضرورت ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی اور قومی مفادات کا تحفظ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مختلف رہنماؤں کی کراچی میں ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور الیکشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر بھی غور۔ بلاول بھٹو کا عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت جاری۔ مزید 30 افراد شہید۔ صہیونی فوج کی رات بھر غزہ میں جبالیہ مہاجر کیمپ اور رہائشی علاقوں پر بمباری۔ شہداء کی تعداد 4385 ہو گئی۔ 1756 بچے اور 967 خواتین شامل۔ 14000 سے زائد زخمی۔ رفح کراسنگ سے محدود پیمانے پر امداد کی فراہمی شروع۔ غذائی اشیاء، ادویات اور طبی سامان پر مشتمل 20 ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ۔ اسرائیل نے ملحقہ 28 مقبوضہ بستیوں کو خالی کرا لیا۔ صہیونی فوج کے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر گولہ باری۔
मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ये पैगाम दिया जा रहा है कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी इसराइलियों से कम अहमियत रखती है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का खिताब। फ़लस्तीनी अवाम की शिकायत जायज़ और तवील हैं। 56 साल के कब्जे का कोई खात्मा नजर नहीं आता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस, मिस्री सदर अब्दुल्ला फतह अल सीसी और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती हल पर जोर। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। सिडनी में बड़ा मुजाहिरा, बेगुनाह फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। इसराइली मजालिम की मजम्मत। बैंकॉक में भी मुजाहरे। शरका का आलमी बिरादरी से फ़लस्तीन में जारी मजालिम बंद कराने की अपील। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 148वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट्स भी शामिल। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से चीन की पॉलिटिकल काउंसलर मिस बाओ योंग की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के मीडिया के दरमियान ताउन को वुसअत देने का फैसला। बेल्ट एंड रोड माशी तरक्की के जरिए अमन और खुशहाली का मंसूबा है। अवामी आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार नागुज़ीर है। सी पैक के दूसरे मरहले से तरक्की और ताउन की नई राहें मुतय्यन होंगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। तहरीक आज़ादी दबाने के लिए कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग। अमलाक की जब्तगी का अमल तेज। मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियां मामूल बन गईं। और गवादर ऑफ रोड रैली के चौथे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले। गैर मुल्कियों समेत ट्रेल बाइकर्स भी रेत के मैदान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते रहे। इवेंट में 200 से जायद रेसर्स शरीक। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरे दिल में इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूं। वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एक नए सफर का आगाज करना है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलकर आइन के मुताबिक काम करना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान असद। ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो, जब कौम पे वक्त कड़ा। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर भी देखने को आए जब पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी अपने वालिद से गले मिली तो दोनों आबदीदा हो गए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत पार्टी की मरकजी क़यादत स्टेज पर मौजूद थी। अपने खिताब में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें और उनके खानदान के अफराद समेत पार्टी रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हुए जेलों में इंतहाई मुश्किल हालात में कैद रखा गया। ताहम लाहौर में अवाम के जमे गफीर को देखकर अपने सारे दुख भूल गया हूँ। जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अपने रब के फजलो करम से लोड शेडिंग खत्म की। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तमाम रियासती इदारों और अवाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में किसी के खिलाफ इंतकामी जज्बात नहीं, हमें मुफाहमत और हम आहंगी से तरक्की का नया सफर शुरू करने की जरूरत है। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है
बस यही है मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो, ये नवाज शरीफ चाहता है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हमें ये फैसला करना होगा कि बहैसियत कौम हमें किस तरह अपना खोया हुआ मकाम हासिल हो सकता है। हमें कशकोल तोड़कर अपनी कौमी गैरत को बुलंद करना होगा ताकि अक़वाम की बरादरी में नुमाया मकाम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे। कश्मीर के मसले को बहुत दानिशमंदी से हल करना होगा। आइन की बालादस्ती कायम करके ही तरक्की के मनाजिल तय हो सकते हैं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिलकर पाकिस्तान की तामीर नौ करेंगे। अपने खिताब के आखिर में मियां नवाज शरीफ ने मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इसराइली मज़ालिम की मुज़म्मत की। असनान सदकी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जलसे से खिताब करते हुए साबिक वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के हर दौर में तरक्की और खुशहाली का सफर आगे बढ़ा, अवामी फलाह का अमल दोबारा शुरू होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में उम्मीद से यकीन का सफर मुकम्मल करेंगे। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास की रिपोर्ट में। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ एक जद्दोजहद का नाम है, एक जज्बा है, एक जुनून है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की की मनाजिल तय करेगा। उन्होंने कहा कि कौम के बेटे के इस्तकबाल करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें कि नवाज शरीफ किस शान के साथ वतन वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क की खातिर 40 साल में से 11 साल जिला वतनी बर्दाश्त की और जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। इतने उतार चढ़ाव आए, उसने इतनी दुख और इतनी तकलीफें उठाई। सियासी तकलीफें तो मैं गिनती नहीं, लेकिन कुछ दुख नवाज शरीफ के दिल को ऐसे लगे हैं कि उनका मदावा अब सारी जिंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस मिट्टी की खातिर, आप सब की खातिर, आपकी महंगाई और मुश्किलात कम करने की खातिर पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और अरूज देखने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की की अलामत है। इनकी सियासत का महवर अवामी खिदमत है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लाहौर और नवाज शरीफ के साथियों ने बता दिया है कि कौम को यकीन है कि नवाज शरीफ ही मुल्क की मसाइल को हल करेंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपने खिलाफ जेर समात मुकदमात का सामना करने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया है। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस समेत दीगर केसेस में अपीलों की बहाली की मुतफर्रिक दरखास्तों पर दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए वारंट मुअत्तल कर रखे हैं। 2017 में अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल करने के बाद अदालती हुक्म पर JIT तश्कील दी गई। 28 जुलाई 2017 को नाअहल करार दिए जाने के बाद नैब को नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया गया। 8 सितंबर 2017 को नैब ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस दायर किए। 26 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ पहली बार एहतसाब अदालत पेश हुए और समातों का अमल शुरू हुआ। 21 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए भी नाअहल करार दिए गए। 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने उन्हें जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई। इस रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सजा हुई। 24 दिसंबर 2018 को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मार्च 2019 को अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल हुई। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ वापस जेल चले गए और इस दौरान जज वीडियो स्कैंडल भी सामने आ गया। अक्टूबर 2019 को अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी।
12 नवंबर 2019 को हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दी, जिसके बाद वो लंदन रवाना हो गए। 24 जून 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें अदम पैरवी पर खारिज कर दी और कहा कि नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएं अपनी अपीलें दरखास्त देकर बहाल करवा सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस साबका दौरे हुकूमत में दायर किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं। 19 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत की दरखास्त पर 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। 27 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का तफसीली फैसला जारी करते हुए लिखा था कि एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सुनाई गई सजा बिला जवाज थी। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा, बारिश सबूत मुल्जमान पर मुंतकिल ही न कर सका। ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का इल्जाम मुस्तरद किया, जिसके खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुल्जिम जब अदालत के सामने सरेंडर कर दे तो अदालत उसे कानून का सामना करने का मौका फराहम करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें अदम पैरवी पर खारिज की। अपील कुनंदा जब भी वापस आए तो वह सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर करने का हक रखता है। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी पर खुसूसी इस्तकबालिया तैयारियां की गई थीं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भी इंतजामिया की जानब से इजाफी इक़दाम किए गए थे। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद अपनी इस रिपोर्ट में। मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनकी भरपूर इस्तकबाल के लिए मुल्क के तूल और अर्ज़ से कारकुनान के काफिले एक दिन पहले ही लाहौर पहुंचना शुरू हो गए थे। पार्टी कारकुन अपने अपने अंदाज में क़यादत से मोहब्बत का इजहार करते रहे। अब मैशत भी ठीक होगी, माशी हालात भी ठीक होंगे और मुल्क भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे अमन अमान भी होगा, खुशहाली भी होगी। नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान में जलसे के मौका पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जगह जगह इस्तकबाली बैनर्स और पार्टी झंडे अवेजा किए गए थे, जबकि मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्तों पर इस्तकबाली कैंप्स लगाए गए। शहर की अहम शाहराहों पर मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के पोर्ट्रेट्स नस्ब किए गए, जिन पर खैर मकदमी और इस्तकबाली नारे दर्ज थे। हम सारे रास्ते नारे मियाँ साहब के लगाते हुए हैं और शेर बताते हैं कि शेर आ गया पाकिस्तान का। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के मौका पर शहर भर में गुलबाशी की गई। खसूसी तैयारे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। मुस्लिम लीग नून के पावर शो के मौका पर शहर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। लाहौर में जलसागाह और इसके अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पर मामूर रहे। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं। पहले भी कहा था कि सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि 2017 में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। दुख की बात यह है कि मुल्क पीछे चला गया। नवाज शरीफ ने कहा कि जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था अब मसाइल का शिकार है। हमने अपने पांव पर खड़ा होना है। एक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है और वही मजाज इदारा है जिसे तारीख देनी है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर अभी हल्का बंदियां हो रही हैं। मर्दमशुमारी के बाद ये भी आईनी तकाजा है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापसी को मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की जानिब से खुसूसी कवरेज दी गई है। ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। 3 बार वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर रहने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए हैं। कौमी और आलमी मीडिया मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से जोड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, दी डिप्लोमेट ने लिखा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी आइंदा होने वाले आम इंतखाबात की शफाफियत की तरफ इशारा कर रही है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इम्कान है कि मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाबात में दोबारा वज़ारत उज़्मा के लिए इंतखाब लड़ेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल के बाद पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात से कबल एक बड़ा जलसा करेंगे। दी राइटर्स का कहना है कि 73 साल मंजे हुए सियासतदान 4 साल बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब अखबारात की सुर्खियां हो या न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस, हर तरफ नवाज शरीफ की वतन वापसी की खुसूसी कवरेज दिखाई देती नजर आ रही है। कौमी मीडिया पर भी नवाज शरीफ को मुल्क की मुस्तकबिल, सियासत, मईशत और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए लाजमी अंसर करार दिया जा रहा है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद ज़रूरत है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अवाम को मोहम्मद नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। माजी की तलखियों को भुलाकर अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को माशी बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं बल्कि मजबूत मईशत की ज़रूरत है।
है। लोगों को रिलीफ फराहम करना और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हुए कहा कि कोई भी जबर किसी मुहिब्बे वतन को मुल्क आने से नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कराची में मुलाकात की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमा अली मदद खटक की भी मुलाकात हुई, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार खालिद अहमद खान और उनके साहबजादे सरदार खान से भी मुलाकात की, जिसमें घोटकी में अवामी फलाह से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली गौहर खान महर ने भी बिलावल भुट्टो से कराची में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के अमल आगे बढ़ाएंगे। खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क से खानदानी और मुरिसी सियासत का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने हकीकी मायनों में अवामी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल को उजागर किया है। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कौमी वसाइल को तरक्की देना होगी। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करते हुए कहा कि OIC का सरबराह इजलास बुलाया जाना चाहिए। फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली जारियत की बात करें तो सिहूनी फ़ौज ने रात भर गजा में बमबारी करते हुए जबालिया महाजिर कैंप और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस दहशतगर्दी में मज़ीद 30 अफराद शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने अल फलूजा, अल अब्दा टावर्स, अल नदा टावर्स और तिल अल हवा के इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 4385 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 1756 बच्चे और 967 खवातीन शामिल हैं। इस जारियत में 14,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इसराइल की जानिब से गजा पर ज़मीनी हमले के लिए सरहद पर फ़ौज को मुतहर्रिक किया गया है। आलमी बरादरी की कोशिशों की वजह से मिस्र के सरहदी मकाम रफ़ा क्रॉसिंग से गजा को महदूद पैमाने पर इंसानी बुनियादों पर इमदादी की फराहमी शुरू हो गई है। गजाई अशिया, अद्वियात और तिब्बी सामान पर मुश्तमिल 20 ट्रकों का काफिला गजा में दाखिल हुआ। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ये क्रॉसिंग पॉइंट कब तक खुला रहेगा। दूसरी तरफ इसराइल और लबनान की सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसराइल ने लबनानी सरहद के साथ 28 मकबूजा बस्तियों को खाली करा लिया है। सहूनी फौज की जानिब से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी की गई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक इस तनाज़े में 16 सहाफ़ी मारे गए हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस हुई। काहिरा अमन समिट में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उर्दन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, बरतानिया, अमरीका, कतर और जनूबी अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन के हुकाम ने शिरकत की। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि गजा में इंसानी तबाही के खात्मे और इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान अमन की बहाली के लिए रोड मैप पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना होगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने गजा पर मुसलसल बमबारी को ज़ालिमाना इक़दाम करार देते हुए कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गजा की नाकाबंदी के जरिए बेबस लोगों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। ये बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि ये पैगाम दिया जा रहा है कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी इसराइलियों से कम अहमियत रखती है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हम गम में डूबे हैं। अस्पताल, स्कूल और मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरते हुए जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। सदर महमूद अब्बास ने इसराइली कब्जा ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए 2 रियासती हल पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा की पट्टी में 24 लाख की आबादी को अलमिये का सामना है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की शिकायत जायज़ और तवील हैं। 56 साल के कब्जे का कोई खात्मा नज़र नहीं आता।
اسرائیلی مظالم کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے جاری ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بے گناہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے دنیا کے مختلف ممالک سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں جاری مظالم بند کرانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ شرکاء نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ فلسطین میں جاری مظالم بند کرائے جائیں۔ انہوں نے اسرائیلی بربریت کا شکار ہونے والے نہتے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی بھی اپیل کی، جہاں پر جنگ کی وجہ سے انسانی بحران کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں 148ویں PMA لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا اور یمن کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ سمیع اللہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے ڈرل سکوائر میں 148ویں PMA لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی۔ پاسنگ آؤٹ میں 67ویں انٹیگریٹڈ کورس، 35ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس اور 22ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ ISPR کے مطابق گریجویٹس میں عراق، مالدیپ، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا اور یمن کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نشان امتیاز ملٹری تمغہ بصالت اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا جائزہ لیا اور کورس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے۔ 148ویں PMA لانگ کورس کی اعزازی شمشیر اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد عبد الرحمان اوان کو دی گئی۔ صدارتی گولڈ میڈل بٹالین سینئر انڈر آفیسر محمد حمزہ خالد، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال سے تعلق رکھنے والے بٹالین سینئر انڈر آفیسر شریجن بنیا کو دیا گیا۔ کمانڈنٹ چھڑی 67ویں انٹیگریٹڈ کورس کے SU کورس انڈر آفیسر محمد نجم اعظم اور 22ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کورس انڈر آفیسر فریحہ کائنات عارف کو دی گئی۔ Every moment spent at the academy is of value and significance to me. It has not only transformed me as a person, but has also given me a true sense of purpose in life. Becoming an officer of Pakistan Army is indeed a great honor and even a greater responsibility, as it is the most professional and battle-hardened army of the world. I express my gratitude to the brother in arms from Pakistan for the warm hospitality and making the stay of my fellow country cadet memorable. PMA plays a critical role in training future leaders of Pakistan Army, and I am proud to have been a part of it. After 1 year of challenging and intense training at Pakistan Military Academy, I am now fully equipped to withstand future challenges with utmost determination and drive. It is a matter of great pride for me that I have been awarded the Commandant's Cane for being the best overall lady cadet of my course. چیف آف آرمی سٹاف چھڑی 35ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے کمپنی کوارٹر ماسٹر سرجنٹ فراست توفیق کو دی گئی۔ پاسنگ آؤٹ کی پروکار تقریب میں سری لنکا کی فوج کے کمانڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل HLVM لیانج نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مسلح افواج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں، کیڈٹس کے والدین اور رشتہ داروں کی بڑی تعداد نے پروکار پریڈ میں شرکت کی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چین کی پولیٹیکل کونسلر مس باؤ یونگ کی قیادت میں چائنیز میڈیا کے وفد نے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے مین سٹریم میڈیا کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ PTV، ریڈیو پاکستان اور APP کے ذریعے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں کو اجاگر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان اور چین کا مشترکہ رپورٹنگ، میڈیا وفود کے تبادلوں میں عملی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان چین کے صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ رول انیشیٹو کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ معاشی ترقی کے منصوبے BRI کے ذریعے امن اور خوشحالی لانے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے CPEC کی اہمیت اور چین کے ساتھ دوستی کے حوالے سے عوامی آگاہی پیدا کرنے میں میڈیا کا کردار ناگزیر ہے۔ مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ پاکستان CPEC کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے مرحلے میں چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں روابط اور تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ پاکستان چین کی ترقی کے تجربے سے استفادے کا خواہاں ہے۔ چینی پولیٹیکل کونسلر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ میڈیا سمیت IT، زراعت اور صنعتی شعبے میں تعاون کو آگے بڑھائیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی مدت میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت
पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मुअय्यना मुद्दत के बाद गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन एजेंसी ऑफ साइलम और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 10,70,000 अफगान शहरी बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। ये गैर कानूनी अफगान तारिकीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और माली जुराइम के हवाले से सबसे बड़ा खतरा हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान तारिकीन वतन की वजह से जराइम में इजाफा देखने में आया है। मज़कूरा बाला हक़ाइक़ के बाद पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ही गैर कानूनी अफगान तारिकीन को मुल्क बदर कर रहा है। चीनी और तेल की स्मगलिंग के खिलाफ निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मुल्क भर में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मुल्क भर में से तकरीबन 1052 मेट्रिक टन चीनी और 2,44,000 लीटर तेल बरामद हुआ है। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ बलूचिस्तान से 1.31 मेट्रिक टन चीनी बरामद हुई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से बड़ी मिकदार में ईरानी तेल बरामद हुआ। स्मगलिंग की रोकथाम से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से स्मगलिंग जैसे मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की वजह से लोगों के घरों और दीगर इमलाक को जब्त करके उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपनी ताज़ा तरीन कार्रवाई में जिला पुलवामा के इलाके अवंतीपुरा और नूरपुरा में आज़ादी पसंद कारकुन फिरोज गिनाई की 1 कनाल और 15 मरले पर मुश्तमिल बागात की गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली। भारतीय हुकाम मकबूजा इलाके में जमात इस्लामी समेत हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों के सैकड़ों मकानात और दीगर जायदादें जब्त कर चुके हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम जमानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में शहदाए बीज पहाड़ा को उनकी बरसी के मौके पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से किए गए कत्लेआम के तमाम वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा दोहराया। काबिज भारतीय फोर्सेज ने 22 अक्टूबर 1993 को जिला इस्लामाबाद के इलाके बीज पहाड़ा में 50 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को उस वक्त शहीद किया था जब वो भारतीय फौजियों की तरफ से दरगाह हजरत बल श्रीनगर के महासरी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अंजुमन शरई शियान के सदर आका सैयद हसन अल मूसवी ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को बार बार थानों में तलब करने की शदीद मज़म्मत की है। आगा मुंतज़िर अल मूसवी समेत अंजुमन शरई शियान के दर्जनों अरकान को गज़ा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ 13 अक्टूबर को बडगाम में एहतजाजी मार्च करने पर मुसलसल थानों में बुलाया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गज़ा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहिरीन इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। श्रीलंका के जाफना अस्पताल में कत्लेआम को 36 बरस गुजर गए। 21 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका के शहर जाफना में अस्पताल में भारतीय फौज ने होलनाक कत्लेआम किया था। भारतीय फौज ने बेगुनाह 47 तामिल मरीजों और 21 डॉक्टरों को बेरहमी से हलाक किया। भारतीय फौजियों ने मुनज़्ज़म तरीके से अस्पताल में कत्लेआम किया और फिर लाशों को जला दिया। 2008 में श्रीलंकन हुकूमत ने जाफना कत्लेआम को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। भारतीय फौज ने 1987 में वेलवितराई में 64 निहत्ते शहरियों, 1988 में चावा कचहरी में 40 जबकि 1989 में कोकोवेल में 40 से ज़ायद बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कत्लेआम से तामिल अवाम में बदले की आग भड़क उठी और उन्होंने भरपूर बदला लिया और हिंदुस्तानी फौज को नाकों चने चबाते हुए अपने मुल्क से निकलने पर मजबूर कर दिया। 1991 में राजीव गांधी पर खुदकुश हमला करने वाली क्लेमन राजा रत्नम तामिल थी जो भारतीय फौजियों के इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनी थी। श्रीलंका में भारतीय फौज ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जिसमें लूटमार, कत्लेआम और इज्तिमाई ज्यादतियां सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान में ज़ियाबत सेंटर मरीजों की सहूलियात के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहा है। साहिवाल में TDC अस्पताल का संग बुनियाद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। साहिवाल में मुकामी रफाई इदारे की जानिब से शुगर के मरीजों के लिए 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद थे। इस मौका पर शुगर के मरीजों के लिए एक रोजा फ्री शुगर कैंप भी लगाया गया जिसका मकसद गरीब, नादार और मुस्तक अफराद को शुगर जैसे मूजी मर्ज के बारे में आगाही और उससे बचाव के बारे में इक़दामात से आगाह करना था। डॉक्टरों की टीम ने 250 मरीजों के मुफ्त टेस्ट, मुआयना और उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मरीज आ चुके हैं और उनकी शुगर चेक की जा रही है, उनको डाइट बताई जा रही है और साथ साथ उनको अद्वियात बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है।
शुगर के मरीजों ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस तरह के कैंप तवातर से लगने चाहिए। मैंने अपनी शुगर चेक करवाई है और उन्होंने मुझे बड़े प्रॉपर तरीके से गाइड किया है और मेरा उन्होंने इलाज भी किया और मुझे हमें खुराक के मुतालिक मुझे बताया गया है। डॉक्टरों ने मुझे अच्छी तरीके से चेक किया है और मुझे दवाई भी फ्री दी है। अच्छी तरह मेरा चेकअप हुआ और मुझे दवाइयाँ फ्री मिली है। डॉक्टरों का कहना था कि शुगर के मरीज बाकायदगी से अपना मुआयना करवाएं और अपने मुआलिज की हदायत के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल करें। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा सायरा बानो ने कहा है कि मुल्क और कौम के मफाद की खातिर GDA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन में मुफाहमत कर सकती है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबा सिंध में पिछले 15 सालों में वसाइल को बेदरीक तरीके से लूटा गया और आवाम के मसाइल जूं के तूं रहे। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि सिंध में नई क़यादत आए जो सूबे को तरक्की की शाहरा पर गामजन करे। उन्होंने गाजा में इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा है कि जेल में तालीम के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाना चाहते हैं। मदद अली सिंधी ने कोयटा जेल के दौरे में हुकाम से कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और न्यू टैक भी जेल में तालीम की फराहमी के मंसूबे में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने कैदियों से भी मुलाकात की और उनमें 2000 किताबें तकसीम की। मुआविन ख़ुसूसी सरमायाकारी मोहम्मद ताहिर जावेद ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए कोशा है। एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान लाइफ स्टाइल एंड फर्नीचर एक्सपो के 77वें एडिशन के इफ्तिताह के मौके पर मुआविन ख़ुसूसी सरमायाकारी ने कहा कि इस तरह की नुमाइशों से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खलीजी रियासतों समेत दूसरे मुल्कों को फर्नीचर की बरामद के लिए बातचीत कर रही है। पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो में 50 से ज़ायद फर्नीचर ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुलबर्ग लाहौर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की नर्सरी का दौरा किया और पंजाब में सरकारी सतह पर बनाई जाने वाली PHU की पहली कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह किया। शहरी सस्ते दामों पौधे, फूल और गुलदस्ते खरीद सकते हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नर्सरी में रखे फूल और पौधे देखे और फ्लावर शॉप का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कहा कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की लाहौर में मज़ीद फ्लावर शॉप्स कायम करने के साथ मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी फ्लावर शॉप्स कायम की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोंकी की सदारत में डिजिटल रोड मैप 2030 से मुतालिक अहम इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में सरकारी महसूलात की वसूली के लिए BPay की तर्ज पर बिलिंग, पेमेंट, एजुकेशन इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर बनाने और बजट तैयारी के लिए सेंट्रल डेटा बैंक और डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए क़वानीन में ज़रूरी तब्दीलियों का जायज़ा लिया गया। बिजली बहरान के खात्मे के लिए नाज़रीन केस्को की जानिब से बलूचिस्तान भर में बिजली चोरों और बिल ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। कोयटा से सरफराज शेख की रिपोर्ट देखते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला में कैस्को की जानिब से बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल भरपूर अंदाज में जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बिजली बिलों की अदम अदायगी पर कोयटा में नादहिंदगान के 455 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। इस हवाले से बिजली चोरों के खिलाफ 1370 दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं, जबकि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 386 FIRs भी दर्ज हैं। कैस्को की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गैर कानूनी बिजली कनेक्शन के मुर्तकिब अफराद पर 36,91,000 यूनिट्स डिटेक्शन जुर्माने की मद में चार्ज किए गए। महतात अंदाजे के मुताबिक चोरी शुदा बिजली यूनिट्स की कीमत 19 करोड़ 5 लाख रुपए बनती है। चोरी है ना, इससे जो बेचारे बिल देने वाले उन पे असरात आते हैं। कोयटा में इस टाइम हमारे जो 54 या 56 फीडर हैं, उनमें से 31 फीडर जीरो लोड शेडिंग में चले गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के तहत कैस्को ने बिजली चोरों से जुर्माने के 15 करोड़ 13 लाख रुपए वसूल किए हैं। मजमूई तौर पर 43,512 नादहिंदगान से 968 मिलियन रुपए बिजली बिलों के बकायाजात की मद में भी वसूल किए गए। कैस्को हुकाम पुरअज़्म है कि गैर कानूनी कनेक्शंस और बिजली बहरान के खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत महकमा वर्क्स एंड सर्विस का इजलास कराची में हुआ। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि तरक्याती स्कीमों की तकसीम के अमल में रुकावट के खात्मे को यकीनी बनाएं और तरक्याती स्कीमों की तौसीक के लिए थर्ड पार्टी किसी मारूफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की खिदमात हासिल की जाएं। वज़ीर आला सिंध ने इंडस हाईवे पर रोड सेफ्टी रिसर्च प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत की और शाहराहों पर जमा होने वाले तमाम टैक्सेस के थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने की हिदायत जारी की।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से डॉक्टर शहला जावेद अकरम की सरबराही में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी, माशी, अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों सूबों के दरमियान तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने समेत बैनुल सूबाई उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ज़राअत, तालीम और सनती तरक्की में दोनों सूबों के दरमियान ताउन मुल्की मजमूई माशी तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा से फारिगुल तहसील 188 तलबा तालिबात को डिग्रियां, जबकि नुमाया पोजीशन पर 47 तलबा तालिबात को गोल्ड मेडल्स दिए। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में इल्म की रोशनी फैलाने में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ निजी शोबे के तालीमी इदारों का भी अहम किरदार है। मुल्क और कौमों की तामीर में स्किल्ड नौजवानों का किरदार कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क और कौम की खिदमत करें। ख़वातीन की हैसियत से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन और महकमे तरक्की नस्मा के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान में कम उम्री की शादियों पर पाबंदी के बिल को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं नज़ाकत अली से। गिलगित बल्तिस्तान में कम उम्री की शादी के बिल को हतमी शक्ल देने के लिए नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन और महकमा तरक्की निस्वां गिलगित बल्तिस्तान के इश्तराक से गिलगित में एक रोज़ा मशावरती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। मशावरती वर्कशॉप से खिताब करते हुए ख़वातीन की हैसियत से मुताल्लिक कौमी कमीशन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ख़वातीन दोस्त कवानीन बना रही है। मशावरती वर्कशॉप से GB असम्बली के स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का बच्चों की शादी के मसाइल पर ताउन और शऊर उजागर करने के इक़दामात काबिल कदर हैं। ख़वातीन की हैसियत से मुताल्लिक कौमी कमीशन का नौजवान लड़कियों को मुस्तकबिल में तिब्बी, ज़हनी और माशी मसाइल से बचाकर गिलगित बल्तिस्तान को खुशहाल बनाने और तमाम नौजवान ख़वातीन को सेहतमंद और महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए किए जाने वाले इक़दामात काबिल तहसीन हैं। नज़ाकत अली, गिलगित। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध और जनूबी और मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और नाज़रीन, आप बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूँ रही। लह में -3, कालाम 0, शोपियाँ 5, रावलाकोट 5, जबकि दीर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में 12, लाहौर 16, कराची 26, पेशावर में 15, जबकि कोयटा में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की मजीद खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं रोटेक्स मैक्स चैलेंज के हवाले से। मुत्तहिदा अरब अमारात में रोटेक्स मैक्स चैलेंज में 14 साला पाकिस्तानी बच्चे मोहम्मद अब्दुल्ला खान का एजाज़। सीनियर मैक्स कैटेगरी की 2 रेसेस में टॉप वाइज इनाम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। रोटेक्स मैक्स चैलेंज मुकाबले अगले साल मार्च तक जारी रहेंगे और इसमें कामयाबी फार्मूला 1 तक में क्वालिफाई करने का जरिया बनती है। अब्दुल्ला बगैर स्पॉन्सर्स के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये रेस 12 नवंबर को होगी। अब्दुल्ला ने अपनी कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और अपनी अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया है। गवादर ऑफ रोड रैली के चौथे रोज स्टॉक मोटर रेस और ट्रेल बाइक्स रेस मुनाकिद हुई, जिसमें 26 मोटर कार्स और 15 ट्रेल बाइक्स ने किस्मत आजमाई की। गैर हतमी नताइज के मुताबिक ऑफ रोड रैली के मेन राउंड के मुकाबलों की पहली कैटेगरी के फातेह मोहम्मद नवाज दश्ती करार पाए। ट्रेल बाइकर्स रेत के मैदान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते रहे, जिनमें 3 गैर मुल्की बाइकर्स भी शामिल हैं।
गवादर ऑफ रोड रैली में 11 गैर मुल्की, 10 खवातीन और 80 मकामी रेसर्स समेत 200 से जायद रेसर्स शरीक हैं। इंटरनेशनल रेसर हैं, ईरान से आए हैं, 10 के करीब हैं, और बाकी जो रेसर हैं, और एक तो स्ट्रीट बाइकर्स का जो रेस इसमें हमने डाला था इस मरतबा, तो उसमें ग्वादर के लोग काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये साल में एक बार होता है तो मैंने ये पहली बार देखा और ये बहुत मज़ेदार है। ये अभी स्टॉक व्हीकल में तो मुझे ये लाल कलर की एक जीप टाइप कुछ गाड़ी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। 2 साल बाद ग्वादर का रैली हो रहा है दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पुरजोश है, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आता है देख के। देखते हैं कि कौन जीतता है। बेल्ट्स वगैरह, हेलमेट्स वगैरह, सेफ्टी की चीज़ें, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वो देखना ज़रूरी होता है, उनको चेक करते हैं और साथ साथ हम लॉन्च करते रहेंगे। पाकिस्तान कस्टम्स, वापडा, पाकिस्तान नेवी और माड़ी पेट्रोलियम की टीमें 67वें नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। रावलपिंडी में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में कस्टम्स की टीम ने पाकिस्तान आर्मी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। फातह टीम की जानिब से हमजा फयाज ने 2 गोल जबकि गजनफर अली ने 1 गोल किया। दिफाई चैंपियन वापडा ने सिंध ए को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी। वापडा की जानिब से ओलंपियन तौसीक हैदर, राना वहीद और हमाद अंजुम ने 2-2 जबकि मोइन शकील और अब्दुर्रहमान ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान नेवी ने पंजाब पुलिस को 3-0 से मात दी। फातह टीम की जानिब से 2 गोल उस्मान अली ने किए, 1 गोल राना वलीद के हिस्से में आया। पाकिस्तान और श्रीलंका की अंडर 19 टीमों ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया। दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे मैचेस 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को खेले जाएंगे। तमाम मुकाबले कराची में होंगे। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।